Good afternoon, students. Today we are going to discuss Gauss theorem and its applications. Gauss theorem and its application. In this first we shall discuss the statement of Gauss theorem. Gauss theorem. Statement of Gauss theorem. As per Gauss theorem, the electric flux which type of electric flux? Normal electric flux. Normal electric flux is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by a surface, that is electric flux phi E is equal to 1 upon epsilon 0 of the total charge enclosed. This phi E may also be rewritten as closed integration of E and ds, vector E and vector ds is equal to 1 upon epsilon 0 q enclosed. Earlier we wrote electric flux d phi E as the dot product of electric field and area vector. So if we calculate total electric flux, we have to integrate it, and the integration is for closed surface, because the Gauss theorem states that the electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed. जो चार्ज एनक्लोज होगा सरफेस से उसी पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, इसलिए यहाँ पर हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन की बात की है, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, जो चार्ज एनक्लोज होगा सरफेस के द्वारा केवल उसी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गॉस थ्योरम केवल और केवल उसी सरफेस के लिए अप्लाई होगी जिस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ना केवल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बल्कि वो सरफेस सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको नोट करना है, ध्यान देना है कि दिस थ्योरम is applicable to a symmetric surface के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल है। सिमेट्रिक सरफेस नहीं होगी तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती, ये इसकी लिमिटेशन भी हो सकती है। Gauss theorem does not apply for a surface which is not symmetric. It is applicable only to a symmetric surface.
and the distribution of charge over the surface should be uniform. ये इस गॉस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस हैं. गॉस थ्योरम के केस में जिस सरफेस की हम बात करते हैं उस सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. उस सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए. ये 2 पॉइंट ध्यान देने वाला है. आगे जब भी हमें गॉस थ्योरम किसी सरफेस पर अप्लाई करना है, what can we do using Gauss theorem? As the statement of Gauss theorem tells us that using Gauss theorem we can calculate electric field intensity. Using Gauss theorem we can calculate electric field intensity. गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये नोट 1. दूसरा हम देखें नोट 2. यूजिंग गॉस थ्योरम we may derive an expression for electric field intensity, right? And it is also important to know to calculate or derive electric field intensity. We have to consider a closed surface to enclose the charges distributed uniformly over a surface. कहने का मतलब है किसी सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो क्लोज्ड सरफेस के द्वारा एनक्लोज किया हुआ होना चाहिए. जब तक वो चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तब तक हम उस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम को यूज करते हुए कैलकुलेट नहीं कर सकते और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं गॉस थ्योरम कैन बी यूज्ड और वी में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से. ठीक है. So these are some points to be taken into account while applying Gauss theorem. Now we should be aware of the distribution of charges. So now we discuss, before going to applications of Gauss theorem, first we should discuss distribution of charges. And what type of distribution we are talking? Continuous distribution of charges. So number 1 is linear charge distribution. इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं सबकी हमें ज़रूरत होगी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से.
या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस पर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम पहले बात करें। सो इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन इन विच charge is distributed uniformly along the length of a given wire. If the charges are distributed linearly, then it is known as linear charge distribution. So here I have taken a wire. This is the wire, and these charges are distributed uniformly over the surface of this wire. Uniformly means all the charges are at equal distances from each other. एक दूसरे से ये सभी चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेज पर हैं, तो इसे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और लीनियर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर और सरफेस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दीज चार्जेस, राइट। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, चार्जेज के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो तभी वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, और दूसरा लीनियर कब कहलाएगा, जब वो अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, it is denoted by lambda, linear charge density, and it is defined as the amount of charge per unit length. means unit length में ये वायर है, इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर is known as linear charge density. And its unit Q is in coulomb, L is in meter, so coulomb upon meter, or you can say coulomb per meter. This is the unit. So this lambda is linear charge density. So how will you define this lambda? Lambda it is amount of charge distributed over unit length of a surface, यूनिट लेंथ ऑफ ए सरफेस। और यहाँ पर हमने वायर की बात की है तो सरफेस ऑफ वायर, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज मेजर्ड इन कूलॉम पर मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस second type of density. Second type of density is surface charge density. Surface charge density denoted by sigma. Sigma is the symbol of surface charge density. Sigma. It is the amount of charge per unit area of any surface. It is the amount of charge distributed over unit area of surface, any surface. Suppose this is the surface और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सभी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
और एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने पहले देखा, हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी और वहाँ पर बात की थी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की। और जब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो ये बात कब होगी, जब हम बात डील करेंगे किसके साथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जब हम डील करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। एस इज एरिया of the surface, S is area of the surface. So Q is in coulomb, area is in meter square, coulomb upon meter square, or you can say coulomb per meter square. This is the formula for surface charge density. Third continuous charge distribution is volume charge distribution. Volume charge distribution. सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे रो से, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है व्हेनेवर एनी अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम ऑफ एनी सरफेस, ओवर ए वॉल्यूम। ये कोई एक पर्टिकुलर शेप है और इसमें इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा ओवर द वॉल्यूम। सो हाउ विल यू डिफाइन दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ charge distributed over unit volume पर जब कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उस केस में जो अमाउंट है चार्ज का ओवर यूनिट वॉल्यूम उसे हम कहते हैं volume charge density, and it is charge upon volume, V. Again, unit of volume charge density, Q is in coulomb, volume is in meter cube, or you can say coulomb per meter cube. So these are three kinds of continuous charge distribution which are necessary to know before going into the application of this Gauss theorem. So quickly I repeat. Up to this we discussed statement of Gauss theorem. As per Gauss theorem, the normal electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by a surface, that is phi E means electric flux is equal to 1 upon epsilon naught or 0 of the total charge enclosed. Or you may write this total electric flux is also written as integration, closed integration E dot ds. So in place of phi E we may write integration E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught q enclosed. This theorem is applicable only to a symmetric surface. सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ओवर द सरफेस शुड बी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और सरफेस सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो ही ये गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट है कि यूजिंग गॉस थ्योरम वी में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कंसिडर ए क्लोज्ड सरफेस to enclose the charge distributed uniformly over a surface. This closed surface to enclose the charge distributed over a surface is known as
Gaussian surface. Gaussian surface. What is Gaussian surface? Gaussian surface, इसे आप नोट कर लेंगे. Gaussian surface is a closed surface. It is a closed surface to enclose the charge distributed uniformly over a surface known as Gaussian surface. Over a surface, किसी surface पर जो charge uniformly distributed होता है openly, open surface पर, over a open surface ना, तो वो closed, जैसे कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर पर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो अब इस चार्ज को एनक्लोज करना है, तो इसके लिए ये सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं. आगे और बता देता हूँ, बात कर लेते हैं थोड़ी सी. गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस, it is the closed surface which is drawn to enclose a charge or a certain amount of charge. फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, मान लीजिए स्फीयर है और इस स्फेरिकल सरफेस पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्फेरिकल सरफेस पर है, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमें पहले इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को, जो कि इस सरफेस पर ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा एक सरफेस के द्वारा. एक क्लोज्ड सरफेस के द्वारा हमें इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. तो डॉटेड लाइन के द्वारा जो ये सरफेस में क्लोज्ड सरफेस मैंने ड्रॉ की है, दिस पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज Gaussian surface. So this dotted closed surface is Gaussian surface. For example, we have this type of wire and we distributed this positive charge uniformly along the length of this wire, means linear charge distribution is there. So again, to apply Gauss theorem, first we have to consider a closed surface which will enclose this positive charge. Now what should be the nature of the closed surface here or Gaussian surface? ये वायर है, तो वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल. जैसे कि ये पेन है, वायर ऐसा ही होता है, तो इसका सरफेस कैसा है,